ओम शांति। आज के बाबा 10-8-2020 मुरली। आज के बाबा प्रथमे बोलছেন যে তোমরা কখনো নিজের স্বধর্মকে ভুলো না। নিজের স্বধর্মকে ভুলে যাওয়াই বড় একটা ভুল। তারপরে বাবা জিজ্ঞেস করছেন যে তোমাদের একটা এমন কি অবস্থা হলে বোঝা যাবে যে বিনাশের সময় এবার কাছে এসে গেছে। তো বাবা উত্তরে বলছেন কি যখন তোমরা সব সময় বাবার ইয়াদে থাকবে এবং তোমরা সত্যযুগের দৃশ্য দেখতে পারবে, তখন বোঝা যাবে যে হ্যাঁ এবার সত্যযুগ কাছে এসে গেছে, এজন্যে বিনাশ হবে। তারপরে বাবা বলছেন যেমন সাঁতারু যারা হয় তারা এই পার থেকে সেই পার যাওয়ার জন্যে তারা খুব ভালো করে সাঁতার কেটে চলে যায়। তো ঠিক সেই রকম তোমাদেরকেও বাবার ইয়াদের যাত্রাতে এই কলিযুগ থেকে এই পার থেকে সত্যযুগ সেই পার যেতে হবে। তো মাঝখানে যেন তোমরা ডুবে না যাও। মায়া অনেক চেষ্টা করবে তোমাদেরকে ডোবানোর, কিন্তু খুব ভালো তোমরা যেন বাবার ইয়াদের সাঁতার কাটতে পারো, এরকম খুব ভালো সাঁতারু হও। আসুন এবার আমরা বাবার মুরলি বিস্তারিতভাবে শুনব। मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म को भूलना ही सबसे बड़ी भूल है। अभी तुम्हें अभूल बनना है। अपने घर और राज्य को याद करना है। बाबा बोलছেন মিঠে बच्चे, নিজের স্বধর্মকে ভোলাই হচ্ছে সবথেকে বড় ভুল। তো এখন আর এই ভুল করো না, এ ব্যাপারে অভুল হও আর নিজের বাড়ি আর নিজের রাজ্যকে সব সময় মনে রাখো। আজকে বাবা প্রশ্ন করছেন, आप बच्चों की कौन सी अवस्था ही समय के समीपता की निशानी है। বাবা জিজ্ঞেস করছেন যে তোমাদের কি একটা অবস্থা সময়ের সমীপতার লক্ষণ, যে সময় খুব কাছে এসে গেছে, এটা বোঝা যাবে। তোমাদের কোন অবস্থার উপরে এটা বোঝা যাবে বাবা জিজ্ঞেস করছেন। তারপরে বাবা উত্তর দিচ্ছেন, आप बच्चे जब याद की यात्रा में सदा मस्त रहेंगे, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, वाणी में याद का जौहर आ जाएगा, अपार खुशी में रहेंगे, घड़ी घड़ी अपनी सतयुगी दुनिया के नज़ारे सामने आते रहेंगे, तब समझो समय समीप है। विनाश में टाइम नहीं लगता, इसके लिए याद का चार्ट बढ़ाना है। बाबा बोलছেন যে যখন তোমরা সব সময় বাবার ইয়াদে একদম মস্তিতে থাকবে, তোমাদের বুদ্ধি আর কোনো দিকে যাবে না, তোমাদের শব্দের মধ্যে বাণীর মধ্যে যোগ বল চলে আসবে আর সব সময় তোমরা খুব খুশিতে থাকবে আর সত্যযুগের দৃশ্য তোমরা দেখতে পারবে। সাক্ষাৎকার শুরু হয়ে যাবে যে সত্যযুগে কিভাবে আমরা থাকব। তো এইসব যখন হবে তখন বুঝে নেবে যে সময় এখন কাছে এসে গেছে। তো বাবা বলছে বিনাশ হওয়া কোনো বড় কথা নয়, কিন্তু তার আগে তোমাদের নিজের স্থিতিকে বা অবস্থাকে ভালো বানানো বা একদম যোগযুক্ত হওয়াই হচ্ছে বড় ব্যাপার। বিনাশ তো খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যেতে পারে। আজকের মুরলির গান হচ্ছে, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। বলছে যে আমরা বাবাকে পেয়ে আমরা সব কিছু পেয়ে গেছি, আমাদের পুরো এই ধরিত্রী জমি আর আকাশ সব কিছু আমরা পেয়ে গেছি বাবাকে পাওয়ার পরে। ओम शांति। रूहानी बच्चे इस गीत का अर्थ तो समझते होंगे। अब बेहद के बाप को तो पा लिया है, बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है,
जिस वर्षे को कोई भी छीन नहीं सकता। वर्षे का नशा तब चला जाता जब रावण राज्य शुरू होता। बाबा बोलছে এখন তোমরা বেহদের বাবা থেকে যে স্বর্গের বর্ষা পাচ্ছ সেটাকে কেউ তোমাদের থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। আবার যখন রাবণ রাজ্য শুরু হবে তখন এই বর্ষা চলে যাবে। तो यह भी ड्रामा बना हुआ है। बच्चों को सृष्टि ड्रामा का भी ज्ञान है। यह चक्र कैसे फिरता है, इनको नाटक भी कहें ड्रामा भी कहें। बच्चे समझते हैं बरोबर बाप आकर सृष्टि का चक्र भी समझाते हैं। जो ब्राह्मण कुल के हैं उन्हों को ही समझाते हैं। বাবা বলছেন আমি ব্রাহ্মণ কুলের আত্মাদেরকেই এই জ্ঞান দিচ্ছি। बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको समझाता हूँ। पहले तुम सुनते थे 84 लाख जन्म लेने बाद फिर एक जन्म मनुष्य का मिलता है, ऐसे नहीं है। बाबा को तो मिष्टि करे বোঝাচ্ছেন যে আগে তোমরা এতদিন কি শুনে এসেছো, তোমরা এটাই শুনে এসেছো যে মনুষ্য আত্মা 84 লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করার পরে একটা মানব জন্ম পায়। কিন্তু বাবা বলছে এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমরা 84টা মানুষ রূপে জন্ম নিচ্ছি, কিন্তু তার মধ্যে এই ব্রাহ্মণ জন্ম হচ্ছে দুর্লভ। तो अभी तुम सब आत्माएं नंबरवार आती जाती हो। बुद्धि में आया है पहले पहले हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, यह भी गायन है ना। बाबा बोलছেন যে তোমরা নিজেরাই পূজ্য ছিলে আবার তোমরাই পূজারি হয়েছো। তো নিজেই পূজ্য নিজেই পূজারি, এটা তোমাদের জন্যে এই গায়নটা আছে, এটা শিব বাবার জন্যে নয়। तो आपके ही यह सब रूप हैं, अनेक मत मतांतर हैं। মানুষ সবার ভগবানের জন্যে ভেবে নেয় যে ভগবানই পূজ্য হয়, ভগবানই पुजारी है। इस श्रीमत पर चलते हो, तुम समझते हो हम स्टूडेंट पहले तो कुछ नहीं जानते थे, फिर पढ़कर ऊंच इम्तहान पास करते हैं। वह स्टूडेंट भी शुरू में तो कुछ भी नहीं जानते हैं, फिर इम्तहान पास करते करते समझते हैं कि अभी हमने बैरिस्ट्री पास कर ली है। बाबा बोलছেন যে যখন আমরা প্রথম ক্লাসে ভর্তি হই তখন তো কিছু মনে হয় না যে কত পড়াশোনা করতে হবে। ধীরে ধীরে যখন একটা স্টুডেন্ট ব্যারিস্ট্রি পাস করে নেয় তখন বোঝে যে হ্যাঁ আমি এত বড় পড়াশোনা করলাম। তো সেরকম বাবা বলছে তোমরাও এখন এই জ্ঞানের পড়াশোনা করছো, তারপরে ফাইনাল এক্সাম দিয়ে তোমরাও পাস হয়ে যাবে আর তোমাদের ডিগ্রি দেবী দেবতা সে ডিগ্রি তোমরা নিয়ে নেবে। तुम भी अब जानते हो हम पढ़कर मनुष्य से देवता बन रहे हैं, सो भी विश्व के मालिक। वहाँ तो है ही एक धर्म एक राज्य, तुम्हारा राज्य कोई छीन न सके। वहाँ तुमको पवित्रता शांति सुख संपत्ति सब कुछ है। गीत में भी सुना ना, अब यह गीत तुमने तो नहीं बनाए हैं, अनायास ही ड्रामा अनुसार इस समय के लिए यह बने हुए हैं। बाबा बोलছেন একটা খুব সুন্দর গান আছে, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया जमी तो जमी आसमान पा लिया। তো বাবা বলছেন এই গানগুলো ড্রামা অনুসারে তোমাদের জন্যই তৈরি হয়েছে। তো তোমরা এখন এই গানের আসল মিনিং কি সেটা তোমরা বুঝতে পারছো যে বাবাকে পেয়ে আমরা পুরো ब्रह्मांड पे गेलम। तो आधा कल्प सुख का वर्षा रहता है। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, आधा कल्प से भी जास्ती तुम सुख भोगते हो। बाबा से शुधु
2500 বছর নয়, সত্যযুগ বা ত্রেতাযুগ শুধু নয়, কিন্তু দাপর যুগেও আমরা দুঃখী ছিলাম না, প্রচুর সুখ ছিল। फिर रावण राज्य शुरू होता है। मंदिर भी ऐसे हैं जहाँ चित्र दिखाते हैं देवताएं वाम मार्ग में कैसे जाते हैं। ड्रेस तो वही है, ड्रेस बाद में बदलती है। हर एक राजा की अपनी अपनी ड्रेस, ताज आदि सब अलग अलग होते हैं। বাবা বলছেন যে সত্যযুগের দেবী দেবতারা তো একই রকম ড্রেস পরতো, তারপরে দাপরের পর থেকে আলাদা আলাদা ताज, आलादा आलादा वेशभूषा होएछे। तो अब बच्चे जानते हैं हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहते हैं ना। बच्चों, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, सुनती तो आत्मा है ना। हम आत्मा है न कि शरीर। और जो भी मनुष्य मात्र हैं उन्हों को अपने शरीर का नाम का नशा है, क्योंकि देह अभिमानी है। बाबा बोलছেন যে যারা এই আত্মার জ্ঞান জানেই না তারা তো দেহ অভিমানেই ফেসে আছে, নিজের নাম রূপের অহংকার আছে। हम आत्मा हैं यह जानते ही नहीं। वह तो आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कह देते हैं। अभी तुमको बाप ने समझाया है, तुम आत्मा सो विश्व के मालिक देवी देवता बन रहे हो। बाबा बार बार आमादेर स्वमानके कत उঁচু নিয়ে যাচ্ছে যে তোমরা এখন আমার বাচ্চা, তারপরে তোমরাই বিশ্বের মালিক, देवी देवता হবে। तो यह ज्ञान अभी है। हम सो देवता फिर क्षत्रिय घराने में आएंगे। 84 जन्मों का हिसाब भी चाहिए ना। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे, सब इकट्ठे थोड़े ही आ सकते हैं। बाबा बोलছেন সত্যযুগে সবাই একসঙ্গে তো আসবে না, এই জন্যে সবারই 84 জন্ম হবে না। যে 2-3টে জন্মের পরে এসেছে, সত্যযুগের 200-250 বছর শেষ হয়ে গেছে তারপরে এসেছে, তো তার কি করে 84 জন্ম হবে। तुम जानते हो कौन से धर्म कैसे आते रहते हैं। हिस्ट्री पुरानी फिर नई होती है। अभी यह है ही पतित दुनिया, वह है पावन दुनिया। फिर दूसरे दूसरे धर्म आते हैं। यहाँ कर्म क्षेत्र पर एक ही नाटक चलता है। मुख्य है 4 धर्म। इस संगम पर बाप आकर ब्राह्मण संप्रदाय स्थापन करते हैं। बाबा बोलছেন যে একমাত্র এই পৃথিবীতেই এই সৃষ্টি কালচক্রের নাটক ঘুরছে এবং এখানে 4টে ধর্ম আসছে। এখন আমরা সঙ্গম যুগে ब्राह्मण संप्रदाय आছি। विराट रूप का चित्र बनाते हैं, परंतु उसमें यह भूल है। बाप आकर सब बातें समझाए अभूल बनाते हैं। बाप तो न कभी शरीर में आते हैं न भूल करते हैं। बाबा बोलছেন আমি কখনো না শরীরে আসি না আমি কোনো ভুল করি। वह तो थोड़े समय के लिए तुम बच्चों को सुख धाम का व अपने घर का रास्ता बताने के लिए इनके रथ में आते हैं। बाबा बोलছেন আমি অল্প সময়ের জন্যে তোমাদেরকে परम धाम और सुख धामेर रास्ता देखानोर जन्य এই शरीरे आसছি। ब्रह्मा बाबार शरीरे बाबा आसছেন। न सिर्फ रास्ता बताते हैं परंतु लाइफ भी बनाते हैं। बाबा ऐसे आमादेर जीवन के एत सुंदर बनाচ্ছেন। कल्प कल्प तुम घर जाते हो, फिर सुख का पाठ भी बजाते हो। बच्चों को भूल गया है हम आत्माओं का स्वधर्म है ही शांत। इस दुख की दुनिया में शांति कैसे होगी, इन सब बातों को तुम समझ गए हो। बाबा बोलছেন এই দুঃখের দুনিয়াতে কি করে শান্তি হবে
एखाने शांति होते ही पारे ना। तुम सबको समझाते भी हो, आहिस्ते आहिस्ते सब आते जाएंगे। विलायत वालों को भी मालूम पड़ेगा यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इनकी आयु कितनी है। बाबा बोलছেন একদিন বিদেশিরাও আসবে আর তোমাদের এই জ্ঞান শুনবে, তারাও বুঝবে যে সৃষ্টি কালচক্রের आयु কত আছে। फॉरेनर्स भी तुम्हारे पास आएंगे, वह बच्चे वहाँ जाकर सृष्टि चक्र का राज समझाएंगे। वह समझते हैं कि क्राइस्ट गॉड के पास जाए पहुँचा। बाबा बोलছেন যে ওরা ভাবে যে ক্রাইস্ট এখন गॉडेर काछे चले गए छे। क्राइस्ट को गॉड का बच्चा समझते हैं। कई फिर यह समझते हैं कि क्राइस्ट भी पुनर्जन्म लेते लेते अभी बेगर है, जैसे तुम भी बेगर हो ना। बाबा बोलছেন क्राइस्टকে নিয়েই অনেক মতান্তর আছে। কেউ ভাবছে যে ক্রাইস্ট গডের কাছে চলে গেছে, আর কেউ ভাবছে যে ক্রাইস্ট এখন পুনর্জন্ম নিতে নিতে এখন বেগর অবস্থায় আছে। তো এটাই ঠিক যে ক্রাইস্টও এখন তমপ্রধান অবস্থায় আছে। বেগার মানে তমপ্রধান। समझते हैं क्राइस्ट भी यहाँ है, फिर कब आएंगे यह नहीं जानते। तुम समझा सकते हो। बाबा बोलছেন যে আবার ক্রাইস্ট এই ধরাধামে পৃথিবীতে কখন আসবে। তো বাবা বলছে এটা খ্রিস্টান ধর্মের লোকেরা জানে না, কিন্তু আমরা জানতে পারছি যে আবার আগামী কল্পে সত্যযুগ ত্রেতা যুগ শেষ হওয়ার পরে আবার যখন দাপর যুগ আসবে, তখন ইব্রাহিমের পরে বুদ্ধের পরে আবার ক্রাইস্ট তার ধর্ম স্থাপন করার জন্যে आसबेन। तुम समझा सकते हो तुम्हारा धर्म स्थापक फिर अपने समय पर धर्म स्थापन करने आएगा। उनको गुरु नहीं कह सकते, वह धर्म स्थापन करने आते हैं। सद्गति दाता सिर्फ एक है, वह जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं वह सब पुनर्जन्म लेते लेते अभी आकर तमो प्रधान बने हैं। अंत में सारा झाड़ जड़जड़ी भूत अवस्था को पा लिया है। बाबा बोलছেন कि जो तो धर्मपितारा एसेছেন এবং যারা যারা ধর্ম স্থাপন করেছেন সবাই এখন একদম তমপ্রধান অবস্থায় পৌঁছে গেছে। তো এই কল্পবৃক্ষ একদম জড়জড়ীভূত অবস্থায় চলে এসেছে। तो अभी तुम जानते हो सारा झाड़ खड़ा है, बाकी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। बड़ का मिसाल है ना, यह बातें बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। तुमको मालूम पड़ा है हम सो देवी देवता थे, फिर अब बनते हैं। यहाँ तुम आते ही हो सत्यनारायण की कथा सुनने, जिससे नर से नारायण बनेंगे। नारायण बनेंगे तो ज़रूर लक्ष्मी भी बनेंगे। लक्ष्मी नारायण होंगे तो ज़रूर उन्हों की राजधानी भी होगी ना। अकेले लक्ष्मी नारायण तो नहीं बनेंगे। लक्ष्मी बनने की अलग कथा थोड़े ही है, नारायण के साथ लक्ष्मी भी बनती है। बाबा बोलছেন যে বাবা এখন সত্যনারায়ণ হওয়ার কথা শোনাচ্ছেন। তার মানে এটা নয় যে লক্ষ্মী হওয়ার জন্য আলাদা কোনো গল্প আছে। তো যেটা নারায়ণ হওয়ার জন্য যে কথা সেটাই লক্ষ্মী হওয়ার জন্যেও আছে। তো বাবা একসঙ্গে নারীকে শ্রীলক্ষ্মী আর নরকে শ্রী নারায়ণ বানাচ্ছেন। लक्ष्मी भी कभी नारायण बनती है, नारायण फिर कभी लक्ष्मी बनते हैं। बाबा बोलছেন যে কখনো কখনো যে নারায়ণ হবে সে তার অন্য জন্মে লক্ষ্মীও হতে পারে, আর যে লক্ষ্মী হয়ে জন্ম নেবে সে অন্য জন্মেও नारायणও হতে পারে। तो कोई कोई गीत बहुत अच्छे हैं। माया के घुटके आने पर गीत सुनने से
हर्षितपना आ जाएगा। जैसे तैरना सीखना होता है ना, तो पहले घुटके आते हैं, फिर उनको पकड़ लेते हैं। यहाँ भी माया के घुटके बहुत खाते हैं। तैरने वाले तो बहुत होते हैं, उन्हों की भी रेस होती है, तो तुम्हारी भी रेस होती है उस पार जाने की। बाबा उदाहरण दिच्छेन कि যখন কোনো মানুষ সাঁতার শেখে তখন অনেক সময় সে জলে ডুবে যাওয়ার মতন তার পরিস্থিতি এসে যায়, তখন তার যে উস্তাদ তাকে যে শেখাচ্ছে সাঁতার, তো তখন সে ধরে নেয়। তো সেরকম বাবা বলছে যে অনেক বাবার বাচ্চারাও মায়ার ঘুটকা খাচ্ছে, মানে মায়া থেকে হেরে যাচ্ছে। আবার কেউ তাকে সাপোর্ট দিচ্ছে, তাকে কেউ সাহায্য করছে, আবার তাকে জ্ঞান যোগে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তো এইভাবে এখানেও এরকম পরিস্থিতি হয়। তো याद नहीं करते तो ঘুটকা খাতে हैं। বাবা বলছেন যদি ভালো মতন যোগ না করে তাহলে মায়ার ঘুটকা খাবে। बाप कहते हैं याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा, तुम उस पार चले जाएंगे। तारों कोई बहुत तीखे होते हैं, कोई कम। বলছে যারা সাঁতার শেখায় তারা কেউ কেউ খুব তীক্ষ্ণ হয় আর কেউ একটু কম। यहाँ भी ऐसे हैं, बाबा के पास चार्ट भेज देते हैं। बाबा जांच करते हैं याद के चार्ट को, यह राइट रीति समझते हैं या रॉन्ग समझते हैं। कोई कोई दिखाते हैं हम सारे दिन में 5 घंटा याद में रहा, हम विश्वास नहीं करते, ज़रूर भूल हुई है। बाबा बोलছেন অনেক বাচ্চারা বলে বাবা আজকে আমি সারা দিন 5 ঘন্টা তোমার ইয়াদে ছিলাম। তো বাবা বলছে যে বাবা বিশ্বাস করে না, নিশ্চয়ই কিছু ভুল হয়েছে। कोई समझते हैं हम जितना समय यहाँ पढ़ते हैं उतना समय तो चार्ट ठीक रहता है, परंतु नहीं, बहुत हैं यहाँ बैठे हुए भी सुनते हुए भी बुद्धि बाहर में कहाँ कहाँ चली जाती है। বাবা বলছেন যে অনেকেরা ভাবে কি যতক্ষণ আমরা সেন্টারে বসে মুরলি শুনছি তো আমাদের স্থিতি খুব ভালো আছে, তখন আমাদের যোগেরই স্থিতি আছে, এই জন্য ওরা চার্টে 5 ঘন্টা লিখে দেয়। কিন্তু বাবা জানেন যে মুরলি শোনার সময়ও বাচ্চাদের বুদ্ধি এদিকে ওদিকে চলে যাচ্ছে, পুরো অ্যাকুরেট মুরলি শুনতে পারে না। भक्ति मार्ग में ऐसे ऐसे होता है, सन्यासी लोग कथा सुनाते हैं, फिर बीच बीच में पूछते हैं हमने क्या सुनाया। বাবা বলছেন সন্ন্যাসীরাও যখন কোনো প্রবচন করে বা কোনো গল্প শোনায় তখন তারা জিজ্ঞেস করে যে তোমরা কি বুঝেছো, কি শুনেছো বলো। देखते हैं यह तवाई हो बैठा है तो पूछते हैं, फिर बता नहीं सकते। অনেকেরা অন্য হয়তো চিন্তনে বসে আছে, এই জন্যে সন্ন্যাসী যা বলছে সেটা বুঝতে পারছে না, তাই গুরু গোসাইরাও জিজ্ঞেস করে যে বলো তোমরা কি শুনেছো। बुद्धि कहाँ न कहाँ चली जाती है, एक अक्षर भी नहीं सुनते। यहाँ भी ऐसे हैं, बाबा देखते रहते हैं, समझा जाता है इनकी बुद्धि कहाँ बाहर भटकती रहती है, इधर उधर देखते रहते हैं। ऐसे ऐसे भी कोई कोई नए आते हैं, बाबा समझ जाते हैं पूरा समझा नहीं है, इसलिए बाबा कहते हैं नए नए को जल्दी यहाँ क्लास में आने की छुट्टी न दो। বাবা বলছেন যে যারা নতুন নতুন এখনও পুরো জ্ঞান বোঝেনি তো তারা যদি বাবা যখন মুরলি শোনাচ্ছে তো সেখানে গিয়েও তারা বুঝবে না, তাদের বুদ্ধি এদিক ওদিকে ঘুরবে। তাই বাবা বলছেন একদম নতুন নতুনকে বাবার সামনে না নিয়ে আসাই ভালো। बाबा समझ जाते हैं पूरा समझा नहीं है, नहीं तो वायुमंडल को बिगाड़ते हैं।
ভগবান টিচার হয়ে পড়াচ্ছেন, আর ওনার সামনে যে স্টুডেন্ট সে এদিকে ওদিকে যদি তাকায় তো বাবা কি বলবেন যে বায়ুমণ্ডলকে নষ্ট করছে। आगे चल तुम देखेंगे जो अच्छे अच्छे बच्चे होंगे यहाँ बैठे बैठे बैकुंठ में चले जाएंगे। বাবা বলছেন যে যতদিন কাছে আসছে সত্যযুগের, তো যারা ভালো ভালো যোগী আত্মা তারা বসে বসেই তারা সত্যযুগের সাক্ষাৎকার করবে। बहुत खुशी होती रहेगी, घड़ी घड़ी चले जाएंगे, अभी टाइम नज़दीक है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जाएगी। घड़ी घड़ी स्वर्ग में अपने महल देखते रहेंगे, जो कुछ बताना करना होगा उनका साक्षात्कार होता रहेगा। समय तो देख रहे हो ना कैसे कैसे तैयारियां हो रही हैं। बाप कहते हैं देखना कैसे एक सेकंड में सारी दुनिया के मनुष्य खाक में मिल जाएंगे। বাবা বলছে তোমরা দেখবে যে কিভাবে এক সেকেন্ডের মধ্যে সারা দুনিয়ার মানুষ একদম ছাই হয়ে যাবে। একটা বম বা একটা মিসাইল ফাটবে আর পুরো এক একটা দেশ शेष हो जावे। बम लगाया और यह खलास हुए। अच्छे जानते हो अभी अपनी राजाई स्थापन हो रही है, अभी तो याद की यात्रा में मस्त रहना है, वह जौहर भरना है जो कोई को भी दृष्टि से तीर लग जाए। पिछाड़ी में भीष्म पितामह आदि जैसे को तुमने ही ज्ञान के बाण मारे हैं, झट समझ जाएंगे यह तो सत्य कहते हैं। ज्ञान का सागर पतित पावन तो निराकार भगवान है, कृष्ण हो न सके उनका तो जन्म दिखाते हैं। कृष्ण के वही फीचर्स फिर कभी मिल न सकें, फिर सतयुग में वही फीचर्स मिलेंगे। বাবা বলছেন যে সত্যযুগে প্রথম জন্মে কৃষ্ণ যে নাম রূপে আসবে, যে স্বরূপে আসবে, তার পরবর্তী জন্মে সে স্বরূপ থাকবে না। তো সত্যযুগে 8টা জন্ম যদি হয় কৃষ্ণের, তো 8টা জন্মে 8টা আলাদা আলাদা ওনার চেহারা হবে, ফিচার্স হবে। तो हर एक जन्म में हर एक के फीचर्स अलग अलग होते हैं। यह ड्रामा का पार्ट ऐसे ही बना हुआ है। वहाँ तो नेचुरल ब्यूटीफुल फीचर्स होते हैं। अब तो दिन प्रतिदिन तन भी तमो प्रधान होते जाते हैं। पहले पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो हो जाते हैं। यहाँ तो देखो कैसे कैसे बच्चे जन्म लेते हैं, कोई की टांग नहीं चलती, कोई जामड़े होते हैं, क्या क्या हो जाता है। বাবা বলছেন এখন এক একটা বাচ্চা কিভাবে জন্ম নিচ্ছে, কারো পা নেই, তো কেউ ছোট থেকেই একদম বেটো। তো বাবা বলছেন যে সত্যযুগে এই ধরনের কিছু ব্যাপার থাকবে না। सतयुग में ऐसे थोड़े ही होता है, वहाँ देवताओं को दाढ़ी आदि भी नहीं होती है, क्लीन सेव होती है। बाबा सत्ययुगे दर्शन कराচ্ছেন যে देवी देवताদের সেখানে বা দেবতাদের দাড়ি হবে না, क्लीन सेव होती है। नैन चैन से मालूम पड़ता है यह मेल है, यह फीमेल है। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कल्प कल्प आकर हमको राजयोग सिखलाए मनुष्य से देवता बनाते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि और जो भी धर्म वाले हैं सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। বাবা বলছেন যে বাকি সমস্ত ধর্মের আত্মারা পরমধামে
निजेर निजेर सेक्शने चले जावे। आत्माओं का झाड़ भी दिखाते हैं ना, चित्रों में बहुत करेक्शन करते बदलते जाएंगे। जैसे बाबा सूक्ष्म वतन के लिए समझाते हैं, संशय बुद्धि तो कहेंगे यह क्या, आगे यह कहते थे अभी यह कहते हैं। लक्ष्मी नारायण के दो रूप को मिलाकर विष्णु कहते हैं। बाकी चार भुजा वाला मनुष्य थोड़े ही होता है। रावण के 10 शीश दिखाते हैं, ऐसे कोई मनुष्य होते नहीं। बाबा बोलছেন चार हाथ নিয়ে কোনো মানুষ হয় না, মানে বিষ্ণুর 4টে হাত ছিল না, আবার রাবণের 10টা মাথা ছিল না। तो हर वर्ष रावण को जलाते हैं, यह है जैसे गुड़ियों का खेल। बाबा বলছে এরকম বিভিন্ন দেবী দেবতার মূর্তি বানিয়ে তাকে পুজো করা, তারপরে তাকে জলে ভাসিয়ে দেওয়া, এগুলো হচ্ছে পুতুল পুজো। मनुष्य कहते हैं शास्त्रों बिगर हम जी नहीं सकते, शास्त्र तो हमारे प्राण हैं। गीता का देखो मान कितना है, यहाँ तो तुम्हारे पास मुरलियों का ढेर इकट्ठा हो जाता है, तुम रख कर क्या करेंगे। बाबा বলছেন ভক্তি মার্গের মানুষ কি বলে যে শাস্ত্র হচ্ছে আমাদের প্রাণ, আমরা শাস্ত্র ছাড়া থাকতে পারবো না, কত সম্মান দেয় গীতাকে। তো বাবা বলছে তোমাদের তো আসল গীতা হচ্ছে বাবার মুরলি, কিন্তু এটাও তো আমরা সত্যযুগে নিয়ে যেতে পারবো না। तुम रख कर क्या करेंगे, दिन प्रतिदिन तुम नई नई पॉइंट्स सुनते रहते हो। हाँ, पॉइंट्स नोट करना अच्छा है, भाषण करते समय रिहर्सल करेंगे। हाँ बाबा বলছে মুরলিতে যে পয়েন্ট নতুন নতুন আসছে সেটা নোট করা ভালো, যখন তোমরা কোথাও গিয়ে জ্ঞান শোনাবে বা বক্তৃতা দেবে তখন তোমাদের এটা কাজে লাগবে। तो यह पॉइंट समझाएंगे। टॉपिक की लिस्ट होनी चाहिए, आज इस टॉपिक पर समझाएंगे। रावण कौन है, राम कौन है, सच क्या है, वह हम आपको बताते हैं। बाबा বলছে যে সবাইকে বলো রাবণ কে বা রাম কে, सच क्या है वह हम आपको बताते हैं। इस समय रावण राज्य सारी दुनिया में है, 5 विकार तो सब में है। बाप आकर फिर राम राज्य की स्थापना करते हैं। यह हार और जीत का खेल है। हार कैसे होती है, 5 विकारों रूपी रावण से। आगे पवित्र गृहस्थ आश्रम था, अब पतित बन गए हैं। बाबा বলছে आगे সত্যযুগে পবিত্র গৃহস্থ আশ্রম, এখন গৃহস্থে বিকার এসে গেছে বলে আর আশ্রম থাকলো না, আশ্রম আলাদা হয়ে গেল, মন্দির আলাদা হয়ে গেল, আর বাড়ি আলাদা হয়ে গেল। আগে তো সত্যযুগেই প্রত্যেক বাড়ি আশ্রম ছিল, মন্দির ছিল, যেহেতু সম্পূর্ণ পবিত্রতা ছিল। तो लक्ष्मी नारायण सो फिर ब्रह्मा सरस्वती। तो बाप भी कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। तुम कहेंगे हम भी बहुत जन्मों के अंत में बाप से ज्ञान ले रहे हैं। तो यह समझने की बातें हैं। कोई की डलहेड बुद्धि है तो समझते नहीं हैं। বলছে কারো কারো বুদ্ধি একদম डलहेड, तो কিছুই বোঝে না। यह तो राजधानी स्थापन हो रही है, बहुत आए फिर चले गए, वह फिर आ जाएंगे। प्रजा में पाई पैसे का पद पा लेंगे, वह भी तो चाहिए ना। বাবা বলছেন যারা বাবার জ্ঞান ছেড়ে চলে গেছে তারাও আবার লাস্টে চলে আসবে, আর সত্যযুগে খুব অল্প পদ পাবে। अच्छा, मीठे मीठे सिक्खी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। आज के धारणार मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट, सदा इसी नशे में रहना है कि हम अभी यह पढ़ाई पूरी कर मनुष्य से देवता सो विश्व के मालिक बनेंगे। बाबा बोलছেন সদাই খুশিতে থাকো যে এখন আমরা ঈশ্বরীয় পড়াশোনা শেষ করে এবার আমরা মানুষ থেকে দেবতা হয়ে বিশ্বের মালিক হব। हमारे राज्य में पवित्रता सुख शांति सब कुछ होगा। हमारे राज्य पवित्रता सुख शांति सब থাকবে, उसे कोई छीन नहीं सकता, क्यों केड़े निते पारबे ना। 2 नंबर, इस पार से उस पार जाने के लिए याद की यात्रा में अच्छा तैराक बनना है। बाबा बोलছেন কলিযুগ থেকে সত্যযুগে যাওয়ার জন্যে বাবাকে খুব ভালো করে याद করে यादेर यात्राয় ভালো সাঁতারু হতে হবে। माया के घुटके नहीं खाने हैं, अपनी जांच करनी है, याद के चार्ट को यथार्थ समझकर लिखना है। आज के वरदान, श्रेष्ठ बेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। श्रेष्ठ बेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। जो श्रेष्ठ बेला में जन्म लेने वाले भाग्यशाली बच्चे हैं, वह कल्प पहले की टचिंग के आधार पर जन्मते ही अपने पन का अनुभव करते हैं। बाबा बोलছেন যারা সঙ্গম যুগের এই শ্রেষ্ঠ সময়তে বাবার জ্ঞানে চলে আসছে, এই দিব্য জন্ম প্রাপ্ত করছে, সে ভাগ্যবান বাচ্চারা যেই বাবার ঘরে আসে বা বাবার জ্ঞান শোনে তখনই তারা অনুভব করে যে এটা আমার নিজের ঈশ্বরীয় পরিবার বা এটাই সে আসল জ্ঞান যেটা আমি খুঁজছিলাম। वह जन्मते ही सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी होते हैं। से जन्म नीते नीते बाबा समस्त संपत्तिर अधिकारी हो जाए। जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार समाया हुआ है, ऐसे नंबर 1 बेला वाली आत्माएं सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजाने के आते ही अनुभवी बन जाते हैं। बाबा बोलছেন যেমন একটা বীজের মধ্যে পুরো বৃক্ষের আসল সার লুকিয়ে থাকে, তো ঠিক সেই রকম এই সঙ্গম যুগের এই প্রাপ্তির সম্পন্ন সময়তে যে আত্মা আসে সে বাবা থেকে সর্ব প্রাপ্তির খাজানা নিয়ে খাজানার অধিকারী হয়ে যায়। वे कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख का अनुभव नहीं होता, शांति का होता है, शांति का होता सुख का व शक्ति का नहीं। बाबा बोलছে যে সে আত্মা কখনো এটা বলবে না যে সুখের অনুভব করছি কিন্তু শান্তির অনুভব হচ্ছে না, বা শান্তির অনুভব করছি কিন্তু সুখের অনুভব হচ্ছে না বা শক্তির অনুভব হচ্ছে না। सर्व अनुभवों से संपन्न होते हैं। और से आत्मा सर्व अनुभव থেকে संपन्न होवे। स्लोगन है, अपने प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। अपने प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। बाबा बोलছেন যে নিজের খুশির ছায়া দ্বারা সকলকে শীতলতার অনুভব করানোর জন্যে নিজে নির্মল হও আর নির্মাণ হও। ओम शांति।